Good morning, children. We are doing Gauss law these days. Application problems, lot of challenging problems, and I assure you that at the end of these sessions, you will be able to solve any problem related with the Gauss law. So let me start our class today. We are completing the topic electrostatics, and we have done Coulomb's law, electric field, and now we are calculating electric field and flux using Gauss law. So today we are going to first understand the application of Gauss law when a uniformly charged non-conducting sphere is taken and we are asked to find electric field due to this uniformly charged non-conducting sphere at some point P. Right? So first we will come to the case. We are given charge Q distributed uniformly on a non-conducting sphere. So wherever charge is placed, that charge stays there, right? Then we are asked to find electric field at point P. This point is at distance small r from the center of the charged sphere. The charged sphere is of radius capital R. Its charge is Q, and since it is distributed over the sphere of radius capital R, so we can say that charge divided by volume of the sphere is volume charge density. Its volume charge density represented with a Greek alphabet rho, right? So the first step we are supposed to do is select a perfect Gaussian surface. We are taking Gaussian surface to be sphere here. Why? Because the charge distribution is a sphere and we have to fulfill 4 conditions for Gaussian surface. What are those 4 conditions? First, the Gaussian surface should be closed. Second, the Gaussian surface should pass through that point where we are supposed to calculate electric field. Third, this Gaussian surface should be such that either electric field is equal at all the points of the surface or electric field is perpendicular to the area vector. So, all these conditions are fulfilled with this spherical Gaussian surface, closed Gaussian surface. Let me check it out. At the Gaussian surface, every point is at equal distance from the center of the charge distribution. So electric field is same at every point of the Gaussian surface. Then the area vector here is such that it is perpendicular to the Gaussian surface. See? Area vector is perpendicular to the Gaussian surface. And electric field vector, which is constant in magnitude at every point of the sphere, electric field vector of such charge distribution is coming out radially. It is coming out radially like this. This we have already discussed in the topic electric field lines. So at point P, electric field vector which is coming out radially will also be perpendicular to the Gaussian surface. So what we found that at this point P,
the area vector and electric field vector both are parallel to each other and angle between them is 0. So let we start our calculation of electric field. We have selected a suitable Gaussian surface, a spherical surface, and then we will write the Gauss law. Gauss law is surface integral of electric field is equal to charge enclosed by the Gaussian surface upon epsilon naught. We have written this law, and then let we expand E dot dA. E dot dA can be written as E dA cos 0. Now I think you find the reason why we have taken cos as 0, because E and A are parallel to each other. Then since E is same on the spherical surface, so we take E out of the integration. Now we are left with integration of area vector over this closed surface, Gaussian surface, spherical surface. So integration dA over the closed Gaussian surface means the whole surface area of this Gaussian surface, and which is 4 pi r square, small r square, where small r is radius of this Gaussian surface. So left hand side of the Gauss law we have calculated. Now come to right hand side of the Gauss law. Let me find what is the charge enclosed by this surface, and you can see the whole charge is enclosed by the surface. So we have written in place of charge enclosed Q upon epsilon naught. So E automatically comes to be, let we take 4 pi r square on the right hand side, Q 1 upon 4 pi epsilon naught r square. Now this expression is familiar to us. This is electric field of a point charge, and we have to find the electric field at distance r from the point charge. So what is the conclusion we are getting from this expression? That charge of a uniformly distributed spherical distribution can be taken to be concentrated at the center of the distribution. हमें इसे एक्सटेंडेड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन लेने की ज़रूरत नहीं है. अगर P इस स्फीयर से बाहर है तो इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम कैसे ले सकते हैं? Concentrated at the center of the spherical distribution. We can deal this charge distribution as the point charge placed at the center. So this is the case when point is out of the sphere. But if the point is taken to be on the spherical surface, then see, nothing we have to do. We just have to replace this small r equal to capital R. If this point is at the surface of the sphere, then take this small r equal to capital R. Actually, the concept is that in the case of P to be at the surface, see it carefully. If we take P to be at the surface, and this is our charge distribution, what we do, we take the Gaussian surface very close to this spherical charge distribution. बात समझ आ रही है? P अगर इस सरफेस पर है तो हम क्या करते हैं? बिल्कुल vicinity of P, we take the spherical Gaussian surface and P is very close to this charged sphere. तो अब इस ब्लैक Gaussian surface के लिए जो कंडक्टिंग स्फीयर से समझ लो टच करते हुए बिल्कुल निकल रही है, ये P एट द सरफेस लिया जा सकता है.
लेकिन इस ब्लैक गॉसियन सरफेस के अंदर पूरा चार्ज Q इनक्लोज्ड है। समझ आया कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस? यही हमने कंडक्टिंग सरफेस के केस में भी किया था जब हमने P को स्फेयर के ऊपर ले लिया था। असल में वो स्फेयर से टच करती क्लोज्ड विसिनिटी में बिल्कुल वो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेते हैं और वहाँ पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैलकुलेट करेंगे वो स्फेरिकल सरफेस पर भी एग्जैक्टली लागू हो जाएगी। तो अगर आपने ऐसा गॉसियन सरफेस लिया है तो स्मॉल r को आप लगभग लिख सकते हैं कैपिटल R। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड E इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। So if P is not at distance small r, if P is at the surface, then see logic behind it, how we calculate electric field, right? So we have calculated electric field when P is outside the spherical charge distribution and when P is at the spherical charge distribution surface. Now the next and the last case is when this P is such that it is inside the spherical charge distribution. Inside the spherical charge distribution can be also written as the distance of the point P from the center of the charge distribution is less than the radius of the charge distribution. Getting it? So now what we are supposed to do, first thing again, select a suitable Gaussian surface. और गॉसियन सरफेस इस केस पे सूटेबल क्या होगी? एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस जो क्लोज्ड हो, जो P से पास होती हो। हमने अब P से पास होने वाली गॉसियन सरफेस ब्लैक लाइन से, ब्लैक कलर से ड्रॉ कर दी। ठीक, अब इस पॉइंट P पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेयर है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो रेडियली आउटवर्ड ही होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियली आउटवर्ड होंगी। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान रखने वाले हैं। तो रेडियली आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो P पर इस सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर आएगी और एरिया वेक्टर भी स्फेयर के परपेंडिकुलर होता है, यानी रेडियली आउटवर्ड होता है। तो अब E और एरिया वेक्टर दोनों कैसे हो गए? पैरेलल टू ईच अदर, यानी पिछले केस की तरह यहाँ भी cos थीटा cos 0 हो जाएगा। तो हम लोगों ने गॉसियन स्फेयर ले ली, हम लोगों ने E और dA के वेक्टर्स डायग्राम ड्रॉ करके डायग्राम में cos थीटा डिसाइड कर लिया और अब अगला स्टेप ऑब्वियसली होता है राइट द गॉस लॉ। गॉस लॉ लिखा, E डॉट dA को एक्सपेंड किया, E dA cos 0, तो E dA क्या बचा? E डॉट dA क्या बचा? सिर्फ E dA। फिर सेंटर से गॉसियन सरफेस के हर पॉइंट की डिस्टेंस इक्वल है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा। तो हमने इंटीग्रेशन से E को बाहर ले लिया। अगर इंटीग्रेशन से E को बाहर ले लिया तो हमारे पास फिर क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन बचा, यानी क्लोज्ड सरफेस का पूरा सरफेस एरिया, और वो क्या बचेगा? 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर, इस क्लोज्ड सरफेस गॉसियन सरफेस का पूरा सरफेस एरिया। इधर राइट साइड में आए तो देखा चार्ज एनक्लोज्ड। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन चाहिए, ये समझने वाली बात है। चार्ज इनक्लोज्ड कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर हमें सरफेस चार्ज डेंसिटी की हेल्प लेनी पड़ेगी। क्या है सरफेस चार्ज डेंसिटी? टोटल चार्ज अपॉन टोटल एरिया ऑफ द एक्चुअल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि इफ यूनिट वॉल्यूम of the spherical charge
distribution is considered, then charge of the sphere is Q. So if we take the volume of 4 by 3 pi small r cube, that is volume of Gaussian sphere, then charge will be Q. This is not Q, this is rho. What is volume charge density? Volume charge density is charge on unit area. What is volume charge density? Charge on unit area. So see, यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज है इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो इतने वॉल्यूम पर चार्ज होगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू द रिक्वायर्ड और गिवन एरिया. सी, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? अगर आप सरफेस वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, सॉरी बार बार मेरे मुंह से सरफेस चार्ज डेंसिटी निकल रहा है बेटा, ये 3D में स्फेयर है तो इसमें सरफेस नहीं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है, क्योंकि चार्ज पूरे वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी टोटल चार्ज गिवन टू द स्फेयर अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द स्फेयर 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब. ठीक है ना. अब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है? यूनिट वॉल्यूम पर जितना चार्ज है. तो यूनिट वॉल्यूम पर चार्ज है रो, तो गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम पर चार्ज होगा रो इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस. तो ये जो चार्ज गॉसियन सरफेस पर है, गॉसियन सरफेस के अंदर है, ये हमने क्यू इनक्लोज्ड की जगह रख दिया. देखो, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन सरफेस. इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज इनक्लोज है? रो इंटू वॉल्यूम ऑफ गॉसियन स्फीयर अपॉन एप्सिलॉन नॉट. तो अब जो कैंसिल हो रहा है वो कैंसिल कर दीजिए. 4 कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, आर स्क्वायर इज गोइंग देयर and you are left with R only. So E is rho R upon this 3 epsilon naught. This is very important formula, very important formula. You must remember this formula. So now just look at the electric field expression here and electric field expression here. Here electric field is actually, electric field is decreasing according to 1 upon R square. At the surface electric field actually becomes maximum. See? Getting this point? At the surface इलेक्ट्रिक फील्ड इज मैक्सिमम. कैसे है अभी हम लोग देखते हैं. और अगर आप स्फीयर के अंदर हो तो अंदर से बाहर जाते समय इलेक्ट्रिक फील्ड आर के अकॉर्डिंग इंक्रीज कर रही है. क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप बाहर जाओगे जो गॉसियन सरफेस का रेडियस है वो बढ़ेगा, तो चार्ज इनक्लोज्ड बढ़ेगा, और चार्ज इनक्लोज्ड बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी वो ज़्यादा होगी. एक बार फिर से रिकॉल करते हैं कि E का वेरिएशन इस स्पेशल केस में क्या है. इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप सेंटर से चलना शुरू करो तो पहला पॉइंट, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड R इक्वल टू सेंटर पे क्या रखना पड़ेगा? 0. तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? 0. जैसे जैसे आप इस सेंटर से दूर जाएंगे स्मॉल r बढ़ेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगी. जब आप स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R पर पहुंच जाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम हो जाएगी रो कैपिटल R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट. अगर रो की जगह तुम Q अपॉन 4/3 पाई R
क्यूब रख दोगे तो तुमको यही फॉर्मूला वापस मिल जाएगा। तो हम सेंटर से चले, फील्ड ज़ीरो थी, जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जा रहे हैं फील्ड बढ़ रही है, और जब आप सरफेस पर पहुंच गए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के तो फील्ड मैक्सिमम हो गई और उसकी वैल्यू हो गई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r², कैपिटल R²। लेकिन जैसे ही आप इस सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन से बाहर निकले, आपको बाहर निकलते ही फील्ड का वेरिएशन इस एक्सप्रेशन से मिलेगा, फील्ड इज डिक्रीजिंग अकॉर्डिंग टू 1/r²। तो ये वेरिएशन का जो ग्राफ है ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको तुम्हें कई बार ड्रॉ करके डिस्कस करना होगा, खुद से अपने आप को समझाओ कि जैसे जैसे हम y एक्सिस पर E प्लॉट करेंगे और x एक्सिस पर डिस्टेंस r फ्रॉम द सेंटर, तो जैसे जैसे हम सेंटर से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर से डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इंक्रीज करेगी। सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगी और उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड 1/r² के अकॉर्डिंग जैसे ही हम स्फीयर से बाहर आए डिक्रीज करने लगेगी। तो दिस इज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सो नाउ you take the notes. I have written each and every point I explained. Right? Now let me start with the next question, that is problem of H.C. Verma based on calculation of flux and electric field. क्वेश्चंस जितने डिस्कस करेंगे हम लोग वो सब ऐसे होंगे जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे और तुमको प्रॉब्लम सॉल्विंग में कॉन्फिडेंट करेंगे। तो आई एम टेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टेकन इज क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इन H.C. Verma, ऑब्जेक्टिव 1. नाउ सी व्हाट इज द क्वेश्चन। Q charge is uniformly distributed over a large plastic plate. ये प्लास्टिक की प्लेट है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है, और Q charge is uniformly distributed over a large surface area. लार्ज का मतलब इनफाइनाइट प्लास्टिक शीट कहने का मतलब यही है। तो इसका मतलब है कि जिस सरफेस पर हमने चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट किया है, चार्ज Q उसी सरफेस पर प्लेस्ड है, दूसरी साइड में खुद से चलकर नहीं जाएगा क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग बॉडी है। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस लेयर ऑफ चार्ज एट पॉइंट P इज E. नाउ व्हाट दे आर सेइंग दैट E at point P close to the center of the plate is 10 volts per meter. जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस डिस्कस करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट के बाद आप इस यूनिट को अच्छे से समझने लगेंगे। 10 volts per meter is unit of electric field. Now if plastic plate is replaced by a copper plate of same dimensions and carrying same charge Q, then find electric field at P. बहुत अच्छा सवाल है। जो पहली बार गॉस लॉ पढ़ रहे हैं उनके कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा देने के लिए, देखो जब ये प्लास्टिक शीट थी तो जो चार्ज था वो जिस सरफेस पर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया उस सरफेस पर रिसाइड करता है, दूसरी तरफ अपने आप से नहीं जाता। लेकिन अगर इस प्लास्टिक प्लेट को आपने एक मेटल शीट से रिप्लेस कर दिया तो जो चार्ज Q तुमने इस सरफेस पे रखा था, कंडक्टिंग शीट होने की वजह से और चार्जेस के रिपल्शन की वजह से चार्जेस खुद को एक दूसरे से जितना दूर हो सके उतना दूर प्लेस करना चाहते हैं, तो जो चार्ज है वो इक्वली दूसरी सरफेस पर भी पहुंच जाएगा। तो असल में इस केस में इस सरफेस पर इस एरिया पर चार्ज Q/2 बचेगा
और बचा आधा इस सरफेस एरिया पे चला जाएगा। वो नहीं चाहेंगे कि वो एक ही एरिया पे एक दूसरे से क्लोज रहें। आई बात समझ में? अच्छा, अब क्या हुआ कि अगर प्लास्टिक प्लेट को कंसीडर करो तो ये है चार्ज्ड शीट, मतलब एक ही एरिया पर एक लेयर ऑफ चार्ज है और उसका इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोगों ने कैलकुलेट किया था सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या था? सिग्मा था जितना चार्ज दिया और वो जितने एरिया में स्प्रेड हो गया यूनिफॉर्मली, इसको हमने कहा था सिग्मा, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी। बेटा आप लोग क्या ध्यान से टेक्निकल लैंग्वेजेस को समझ रहे हैं? सरफेस चार्ज डेंसिटी इज चार्ज अपॉन द एरिया ओवर विच दिस चार्ज इज बीइंग स्प्रेड। तो सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी था और एक लेयर या एक शीट ऑफ चार्ज के लिए जो फील्ड आई थी दैट वाज सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर सिग्मा को तुम चार्ज अपॉन एरिया ऑफ द शीट लिख दो तो ये ही सेम फॉर्मूला तुम्हारा हो जाएगा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट A। और उन्होंने कहा कि जब ये प्लास्टिक शीट का चार्ज है तो इसकी वजह से P पर इलेक्ट्रिक फील्ड 10 वोल्ट पर मीटर है। तो हमने कहा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने लिखा है इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 10 वोल्ट पर मीटर गिवन है। ठीक है, अब प्लास्टिक प्लेट को जैसे ही मेटल शीट से रिप्लेस किया गया तुरंत ही चार्ज दूसरे सरफेस पे गया। आधा चार्ज इधर बचा, आधा इधर बचा और एक दूसरे को मैक्सिमम पॉसिबल डिस्टेंस पर अरेंज करके यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। ठीक, अब क्या हुआ कि इस वाले सरफेस का एरिया तो A था लेकिन चार्ज कितना बचा? Q/2। इस साइड का भी सरफेस, ये समझ लो कि शीट ऐसे है, आप ऐसे समझिए कि चार्ज शीट ऐसे रखी हुई है। जो चार्ज था वो प्लास्टिक के केस में सिर्फ एक सरफेस पे ही था क्योंकि हमने एक ही सरफेस पे दिया था, लेकिन जैसे ही इस सरफेस को प्लास्टिक की जगह मेटल किया गया, जो चार्ज हमने एक सरफेस को दिया वो दूसरी सरफेस पर भी स्प्रेड हो गया, आधा इधर आधा इधर। तो जो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी वो हो गई Q/2 अपॉन A एरिया ऑफ दिस सरफेस एंड Q/2 एरिया ऑफ दिस सरफेस। तो मेटल प्लेट लेते ही जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो बदल कर हो गई Q/2 अपॉन A, यानी Q/2A, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी मेटल प्लेट पे जस्ट हाफ हो गई अगर Q उतना ही रहने दे जितना कि पिछले केस में था और एरिया भी, डायमेंशन भी प्लेट का सेम रखे। तो पिछली बार जो सरफेस चार्ज डेंसिटी थी वो Q/A थी और इस बार सरफेस चार्ज डेंसिटी Q/2A हो गई। ठीक है, अब क्या हुआ कि फील्ड एट P, अगर तुम्हें याद हो कि मेटल कंडक्टर में जब हमने फील्ड निकाली थी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट विच इज़ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड, तो उसकी वैल्यू आई थी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यानी अगर आप चार्ज एरिया सब सेम रखते हैं तो सिंगल शीट की वजह से फील्ड आती है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, जबकि डबल शीट की वजह से, मतलब दोनों साइड में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्चुअली डबल हो जाती है। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट की जगह सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। मैं एक बार फिर से समझा दूँ, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे चार्ज डेंसिटी है सिग्मा, अगर ये नॉन कंडक्टिंग है तो एक ही सरफेस पर पूरा चार्ज रिसाइड कर रहा है। अगर आप सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रखें लेकिन कंडक्टिंग बॉडी ले लें तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है सिग्मा, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसकी जस्ट डबल हो जाती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाती है। ये पीछे जो पिछला क्लास था उसे आप लेकर क्लियर कर सकते हैं कॉन्सेप्ट कि हमने क्या डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इन दिस केस व्हेन मेटल शीट इज कंसीडर्ड शुड बी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर आपने
सिग्मा की जगह चार्ज को सेम रखा है दोनों केसेस में, तो असल में मेटल प्लेट में जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो आधी हो गई, फील्ड डबल हुई लेकिन सिग्मा आधा हो गया। आपने सिग्मा की जगह Q/2A रख दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई Q/2A एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखो दोनों केसेस को, यहाँ पे चार्ज डेंसिटी सिग्मा थी लेकिन फील्ड एक लेयर की वजह से होती है σ/2 एप्सिलॉन नॉट। तो जो वैल्यू आ रही थी वो क्या आ रही थी, Q/2 एप्सिलॉन नॉट A, यानी 10 वोल्ट पर मीटर। जब आपने इसको मेटल प्लेट से रिप्लेस कर दिया तो क्योंकि आपने चार्ज उतना ही रखा, जब हम लोगों ने पिछली बार डेरिवेशन किया था तो हमने कहा था कि हम सरफेस चार्ज डेंसिटी को सेम रखेंगे। तो जब हम चार्ज दे रहे थे तो चार्ज इस सरफेस पे और इस सरफेस पे दोनों पर आधा आधा बढ़ता जा रहा था। तो असल में हमको अगर यहाँ Q चार्ज देना पड़ा था जिससे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा हो, तो यहाँ पर हमको 2Q चार्ज देना पड़ा था, Q इधर Q/A इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q/A इधर सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो उस केस में हमने सिग्मा सेम रखा था, और जब सिग्मा सेम रखा था तो इस केस में फील्ड आया था σ/2 एप्सिलॉन नॉट, और मेटल के केस में फील्ड आई थी σ/एप्सिलॉन नॉट, यानी जस्ट डबल। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने तुमको थोड़ा सा कंफ्यूज कर दिया। उन्होंने कहा कि Q को आप सेम रखिए, डायमेंशन को सेम रखिए, बस प्लास्टिक प्लेट को मेटल प्लेट पे चेंज कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। तो जब आप Q सेम रखेंगे तो एक साइड में Q/2 चार्ज रह जाएगा और दूसरी साइड में बाकी Q/2 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा जाकर। तो यहाँ पर सिग्मा सेम नहीं रहा। सिग्मा इस केस में अगर Q/A था तो इस केस में सिग्मा Q/2A हो गया। अगर सिग्मा Q/2A हो गया तो जब आपने मेटल प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला डायरेक्टली P पर अप्लाई किया विच इज σ/एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की जगह आपको रखना पड़ा आधी सिग्मा Q/2A। तो अपने आप जो वैल्यू आई वो सेम आ गई जो कि प्लास्टिक शीट में थी। मतलब जो भी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की दी थी वो सेम रही जब आपने इसको प्लास्टिक शीट को मेटल शीट से बदल दिया, लेकिन चार्ज उतना ही रहने दिया। तो अब बेटा ध्यान से कंपैरिजन करो दोनों का। अगर चार्ज सेम रहा, अगर चार्ज सेम रहा, डायमेंशन सेम रहे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम रखने को कहते तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लास्टिक के केस में जितनी थी मेटल के केस में उसकी डबल हो जाती। इस बात को सोचना और पिछले क्लास को लेकर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना खुद से, और देखना कि कितना क्लियरली आपको ये कंक्लूजन समझ आएगा। Q सेम तो फील्ड सेम, सिग्मा सेम तो फील्ड इज just double in case of metal sheet. Now move to the next question. What is it? A metallic particle without any charge is placed near a charged metal plate. A metallic particle is placed near a charged metal plate of finite size. Metal plate finite size की है. Find direction of force on the particle. ठीक, इसमें तुमको ये काम मैं होमवर्क के लिए दे रही हूँ। मैंने सॉल्यूशन कर दिया है पर यू डोंट सी सॉल्यूशन, यू फर्स्ट जस्ट गो थ्रू द प्रॉब्लम एंड थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स सॉल्यूशन। यू हैव टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द पार्टिकल। जब आप क्वेश्चन को खुद से अटेम्प्ट कर लें तब सॉल्यूशन देखें। राइट, लेट वी कम टू
नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज, ये उसी क्वेश्चन का जो अभी तुमको डिस्कस कर दिया है डिस्कस करने के लिए, उसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन का बचा हुआ पार्ट है ये। आप तब तक सॉल्यूशन नहीं देखेंगे जब तक आप खुद से सॉल्व करके ये नहीं देख लेंगे कि क्या आंसर आपके अकॉर्डिंग है। Then this is question number 5. This question was question number 2 in objective 1. Now come to question number 5, objective 1, H.C. Verma. This is also for the practice. Go through the problem, calculate it by yourself. मुझे पूरी उम्मीद है कि जिन बच्चों ने पिछला क्लास लिया है वो इसे बिल्कुल सही कर लेंगे। Now I am giving you the solution also. You don't have to see it before solving. Right? Solution आप तब देखेंगे जब आप अपने आप से सॉल्व कर लेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है सॉल्यूशन में तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं एक्सप्लेन करूँगी, चाहे इसके लिए एक नया वीडियो ही मेरे को लेना पड़े। और अब हम लोग एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, यूनिट ऑफ फ्लक्स। ठीक है, फ्लक्स इज इलेक्ट्रिक वेक्टर डॉट एरिया वेक्टर, दैट इज ई ए कॉस थीटा। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, ध्यान करो। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम। तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट यहाँ लिख दी। और एरिया का यूनिट आपको पता है मीटर स्क्वायर होता है। तो अब फ्लक्स की यूनिट क्या होगी, ई की यूनिट इनटू एरिया की यूनिट, यानी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और यूनिट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इस फॉर्मूले से आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स अपॉन लेंथ और डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। ये हम लोग तब समझेंगे जब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के कॉन्सेप्ट को आगे आने वाले क्लासेस में समझ लेंगे। यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट आती है वोल्ट पर मीटर। तो यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स की दूसरी यूनिट क्या होती है, वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट, और एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर। मीटर कैंसिल हो गया तो फ्लक्स की यूनिट आ गई वोल्ट इनटू मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड की वोल्ट पर मीटर और फ्लक्स की वोल्ट इनटू मीटर। अगर आपसे डायमेंशन ऑफ फ्लक्स कैलकुलेट करने को कहा जाए तो देखो, फ्लक्स इज डायमेंशन ऑफ फ्लक्स इज डायमेंशन ऑफ ई इनटू डायमेंशन ऑफ ए, क्योंकि जो थीटा है वो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो डायमेंशन ऑफ ई क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ एफ अपॉन डायमेंशन ऑफ क्यू, और डायमेंशन ऑफ ए यहाँ पे एज इट इज लिख दो। डायमेंशन ऑफ एफ देखो मैंने डायरेक्टली लिख लिया MLT-2। डायमेंशन ऑफ एरिया भी डायरेक्टली लिख लिया L2। लेकिन Q फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है, तो इसे हमें पहले करंट इनटू टाइम पे ब्रेक करके लिखना पड़ेगा। उसके बाद डायमेंशन ऑफ करंट इज एम्पियर एंड डायमेंशन ऑफ टाइम इज T। तो फ्लक्स का फाइनली डायमेंशन हो गया M L to the power 3 T to the power -3 and A to the power -1। ये बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। तो आज के क्लास में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए लिए, कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए, और एक बहुत इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर कैलकुलेट की। नेक्स्ट क्लास में हम लोग गॉस लॉ पर और सवाल करेंगे, और मेरी कोशिश होगी कि अगर गॉस लॉ और फ्लक्स से कोई भी सवाल आए तो आप उसको कॉन्फिडेंटली अटेम्प्ट कर सकें। अगर आपको सारे क्लासेस चाहिए बेटा
तो आपको ये चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना होगा, जिससे कि आपको ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहे कि अब नया टॉपिक अपलोड हो गया है। और अगर तुमको सवाल कॉन्सेप्ट सब अच्छे से समझ आ रहा है तो obviously you press the like button so that I come to know that you people are getting the things which I am explaining. So all the best class. Next class में जल्दी ही मिलते हैं.